अब बात करते हैं फुजित्सु की। तो भाई पहले तो वही सेम शुरुआत करते हैं कि भाई प्रोफाइल के बारे में बताइए, फिर कितने राउंड्स हैं, एंड देन हम्म। फिर थोड़ा सा इन डिटेल जाएंगे फुजित्सु करती क्या है। सो ड्रीम 7 के बारे में तो सबको पता है। या या सो फुजित्सु का प्रोफाइल इज एआई रिसर्चर का प्रोफाइल है, which is a more research oriented profile. So as I was telling you कि ML में भी there has become this bifurcation of roles now. पहले ऐसा होता था कि either you go for SD roles or ML roles, but अभी ML में भी there are a lot of bifurcations that you can choose from. So as I said कि Dream 11 had a ML scientist role and which was a more product focused role कि हमारा एक existing एप्लीकेशन है और हमारा एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है. You have to apply machine learning, you have to apply deep learning, AI, whatever, to improve upon that or provide new services there. Right? So this is typically motivation for a role which is more product focused and कुछ भी नाम हो सकता है. Dream 11 में इसी को ML scientist का रोल है. Um, this includes some research component, but the research component is typically lower as opposed to the product component या फिर engineering, ML engineering component. एंड इट विल So बी there are अलाइंड these टू kind दैट of प्रोडक्ट ओनली। right. And then there are आजकल एक और चीज start हो गई है which is ML systems जैसे roles आने लगे हैं which is something I think companies like Qualcomm offer. उनका भी ML scientist या ML researcher ऐसा ही कुछ प्रोफाइल का नाम रहता है but there's also is more aligned towards ML deployment हो गया या quantization of models हो गए हैं. हम्म। ये सारी चीजें कि आप एज डिवाइसेस पे कैसे इसको डिप्लॉय कर सकते हो. सो दीज आर मोर एमएल सिस्टम काइंड ऑफ रोल कि आपको थोड़ा थिक एंड थिन ऑफ दी सिस्टम्स में घुसना पड़ेगा. अंडरस्टैंड व्हाट CUDA इज, अंडरस्टैंड हाउ द एक्सेलरेटर्स वर्क, हाउ डू यू राइट मोर ऑप्टिमाइज्ड एक्सेलरेटर, हाउ डू यू राइट कोड विच इज मोर ऑप्टिमाइज, C++ में कैसे इन्हीं मॉडल्स को कन्वर्ट करें, and a lot more things like that. So these typically form the ML system roles, and then there are typical ML research roles, which was the case with Fujitsu. उनका role था AI researcher का, and this is more of a research oriented role, where your everyday business would be कि आप काफी सारा लिटरेचर पढ़ते हो, उसमें से you find something which can be a good research topic and it should align with company's interest as well. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बोल दिया कंपनी काम कुछ कर रही है, आपने बोल दिया कि नहीं मुझे एक नई मैथमेटिक्स ही डिराइव करनी है, लेट गिव मी 50 million quid to prove this theorem or something like that. I don't know क्या होता है but anyway, so you cannot do that. You have to be aligned with the company's agenda, company's motivations and everything. हम्म। But yeah, you get space to do that. You read a lot of research, you design a lot of experiments, you conduct those experiments, analyze the results, and at the end of the day, write research papers and publish them. Yeah. नाइस नाइस। So this was on the side of role, and Inka Fujitsu had an online interview, online coding round kind of setup. Then the second and third round were technical round and the HR round, which were two interview rounds. नाइस। सो करती क्या है भाई Yeah. ये फुजित्सु? And so Fujitsu is overall a global consultancy firm from Japan, and it provides a lot of IT services throughout and makes a good amount of products as well for the Japanese market and the international market as well. But other than that, so it's very similar to a company like IBM or things like that, गॉट इट। which makes a lot of hardware as well, which provides a lot of services as well, provides consultancy services as well, and at the same time has a research unit of its own. IBM का IBM research है, Fujitsu का राइट। Fujitsu research है, things नाइस like that. So yeah. नाइस नाइस। तो भाई स्टार्ट हो जाते हैं फिर। शॉर्ट लिस्टिंग राउंड कैसा था? Mhm. हाउ वाज इट? Yeah, shortlisting not so because ये research oriented role था तो तो रिज्यूमे बेस्ड? as far as नहीं. So as far as I remember ये shortlisting वाला जो राउंड हुआ था कोई उसमें डीएसए क्वेश्चन नहीं थे, या तो थे तो बहुत ही ज्यादा कुछ सिंपल से डीएसए क्वेश्चन थे. ज्यादातर क्वेश्चंस वर एज सच वेयर यू हैव टू अप्लाई ब्रेन. कुछ ना कुछ उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई थी, यू हैड टू analyze that information, and चार पांच question combined with some information. So one information and 4 to 5 question MCQ based questions were from that information only. And again, very similar kind of situation where you have been given
either data or specific kind of model or something. And also along with that कुछ results भी दिए हुए थे कि अगर मैंने डेटा ए लिया और उसको मॉडल एम पे रन किया तो ये रिजल्ट्स मिले. नाउ यू हैव टू एनालाइज द रिजल्ट्स एंड गिव आंसर टू द क्वेश्चन कि क्या लगता है कि डू यू थिंक दैट ओवरफिटिंग माइट हैव हैपेंड, व्हाई डू यू थिंक ओवरफिटिंग माइट हैव हैपेंड, do you think this situation might have occurred, why do you think this situation might have occurred, Oh, nice. something like that. So the multiple such information and 4 to 5 questions attached with these. So around 15-20 such questions were there, and there were few ML theory के basic questions भी थे, basic जो typically रहते हैं. So, yeah. बट या दिस इज इंटरेस्टिंग एक्चुअली. उन लोगों ने बिल्डिंग ब्लॉक्स देखी दे दिए. अब उसके बाद नाउ दे आर ट्राइंग Hmm. टू सी कि भाई आप क्या डिसीजन लेने वाले हो, विच इज एक्चुअली Right. टिपिकली हैपेंस इन इंडस्ट्री कि भाई वॉट एवर मॉडलिंग यू आर डूइंग, आफ्टर दैट वॉट Hmm. यू विल डिसाइड. सो Yeah. मतलब काफ़ी यूनिक Yeah. राउंड है भाई. मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ इसके बारे में. सो वेरी नाइस. हाँ. नाइस. Yeah. सो Yeah. व्हाट अबाउट राउंड वन? Okay, so इनका जो था वो round 1 again is a little atypical, but research roles में I think this is very common. So round 1 होने से पहले, इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले कुछ दिन पहले, prior to that, they sent us a research paper. There were 2 research papers actually. आपको दोनों में से कोई एक research paper पढ़ना था according to your choice. And in the interviews, that research paper might be discussed. Depending on the interviewer, the research paper might be discussed. अच्छा. So again, a little free flowing, but constrained to some research paper के उसमें. So I think one of the paper which I think I read, because other one was थोड़ा vision से related, and I do not work with vision. I mostly work with language. So दूसरा ये vision वाला पेपर मुझे याद नहीं गया था, but the other paper जो मैं पढ़ के गया था was understanding deep learning requires rethinking generalization करके एक पेपर है, I think 2020 का. It's from ICLR or AAA कहीं से, and it basically talks about however we think about deep learning उस समय तक या फिर अभी भी, even the perspective is कि any problem just deep learning फेंक दो उस पे and it might just solve it, कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाएगा. बट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरलाइजेबिलिटी या फिर बायस वेरिएंस जैसे जो कॉन्सेप्ट हैं, ये सारी चीजों को लेके, सो द पेपर डिस्कस्ड दैट. सो इट वाज अ थ्योरी, एमएल थ्योरी पेपर. सो उन्होंने पेपर भेज दिए थे, वी हैड टू स्टडी दैट पेपर. एंड जो इंटरव्यू राउंड हुआ, फॉर मी इट स्टार्टेड विद डिस्कशन प्लेनली ओवर द रेज्यूमे. बेसिक एमएल क्वेश्चंस शायद नहीं पूछे थे मुझसे, एज फार एज आई रिमेम्बर. दे डायरेक्टली जंप टू द रेज्यूमे, एंड रेज्यूमे में जो भी एग्जैक्ट मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट थे, जो मेरा थीसिस प्रोजेक्ट है इज अ रिसर्च प्रोजेक्ट. सो दे पिक्ड दैट, दे एनालाइज्ड इट. पहले तो समझा कि दे आस्क्ड मी टू एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट टू देम, and then whichever nuances they could catch on, they started asking questions on those nuances. So I'll give a general overview कि questions किस type के थे. So if I told them that I'm using retrieval augmented generation for this task, so they asked me कि why do you think this kind of signal would work, and signals being कि आपने end goal decide कर दिया based on which the gradients flow back through the network. So something like that कि why do you think this particular kind of signal would work. Signal can be आपने जो आउटपुट आया उससे उसको कंपेयर कर लिया, जो रेफरेंस ट्रांसलेशन है फॉर मशीन ट्रांसलेशन, दी रेफरेंस ट्रांसलेशन और दी आइडियल ट्रांसलेशन, उससे कंपेयर कर लिया और फिर आपने बोला कि ये सही था, ये गलत था. सो व्हाई डू यू थिंक दिस वुड वर्क, हाउ डू यू इम्प्रूव अपॉन द रिट्रीवल प्रोसेस. और फिर बिकॉज आई हैड मेंशन्ड इन माय रिज्यूमे मल्टीटास्क लर्निंग एज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट आई यूज फॉर माय रिसर्च. तो उन्होंने उस पर भी डिग इन किया कि where do you apply multitask learning here, in which form do you apply multitask learning, is it during the training process, pre-training के टाइम पे है या फिर fine tuning के टाइम पे है. fine tuning कर रहे हो तो what kind of fine tuning are you doing, are you using some kind of adaptive based training, are you training the entire language model or things like that. So a lot of these questions which I think again as I said कि ये you might be seeing कि कितना ज़्यादा contrast है with something which is more ML engineering role and ML research role, because research role में they dig very little in terms of the basics, because they assume you know the basics, you can figure out the basics. आप जो current trend है, research works on the current trend. 4 दिन पहले कोई research paper आया, आपने पढ़ा, फिर आपने सोचा कि this is something which can be used in my research or something like that. So research moves very fast.
So that's what they were trying to test there कि research acumen कितना है, कितना ज़्यादा आप updated हो in terms of your learning and all those things. And even here mathematics is again going to be always there. उन्होंने भी जैसे कि next token prediction is a pre-training objective that we used. उसका probabilistic formulation लिखवाया. Mass language modeling is something that models like BERT and बट any encoder only model is trained on. So उसका probabilistic formulation लिखवाया. How do you write this in terms of probability? Then maximum likelihood expression कैसे लिखोगे इसका? How do you go to the loss function from here? Cross entropy तक कैसे पहुंचोगे? And all those things. So mathematics again factors in यहाँ पे भी. So yeah, this is I think overall the second part of the interview. And the third part of the interview was based on that research paper that they had sent. उसके concepts हम बोला explain करने के लिए and what is the overall message that the research paper is trying to deliver. And then जो भी मैंने बोला based on that they picked a few nuances again and then asked a few questions here and there. उस पे भी. नाइस भाई। तो आई थिंक ऑलमोस्ट पूरा ही रिज्यूमे बेस्ड पूछ लिया, उसके बाद फिर रिसर्च ओरिएंटेड भी जो भी Yeah. रिसर्च पेपर डिस्कस करने के लिए दिया था वो भी पूछ लिया। एंड वुड Hmm. वुड दे आल्सो टेस्ट यू कि भाई जो भी रेफरेंस पेपर्स हैं वो भी थोड़ा बहुत देखा भाई ने कि नहीं देखा, या फिर सिर्फ उसी रिसर्च पेपर पे रिस्ट्रिक्टेड थे? नहीं, the questions were restricted to that research paper only because I don't think कि because वो research paper खुद ही I think 16-17 पेज से ऊपर का था, तो हाँ। बाहर जाना उससे would have been a little unfair if they would have done it. So I think इसीलिए उन्होंने ज्यादा ऐसे references trace नहीं किए तो उसमें. डिड यू टुक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी या फिर परप्लेक्सिटी टू गेज सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, या फिर खुद ही एक बार में पढ़ के खुद ही समझ लिया? नहीं नहीं, पेपर तो बहुत ही ज्यादा एटिपिकल था. उसमें कॉन्सेप्ट्स लाइक वीसी डायमेंशन, देन जनरलाइजेबिलिटी स्कोर, ये सारी चीजें थी. बिकॉज ये वैसी वैसी चीजें हैं कि ना ये एमएल स्पेसिफिक है ना ये फिर एनएलपी स्पेसिफिक, इस टाइप की नहीं है. इट्स एआई, जनरलाइज्ड एआई के ऊपर थियोरेटिकल पेपर था. राइट। तो इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट. चैट जीपीटी हेल्प्ड वहाँ वहाँ पे कि जो भी रेफरेंसेस, जैसे मुझे अब मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है लेकिन यहाँ पे वीसी डायमेंशन मेंशन कर दिया पेपर में कहीं. तो रादर देन कि मैं वीसी डायमेंशन का पेपर उठा के पढूं, इट्स इजियर कि चैट जीपीटी को बोल दूं कि बस ये कॉन्सेप्ट समझा दे मेरे को. फटाक से बता दे, हाँ। सो हाँ, थिंग्स लाइक दैट इज वेयर थिंग्स लाइक चैट जीपीटी एंड परप्लेक्सिटी हेल्प रियली वेल. नाइस नाइस नाइस। तो खतरनाक था, मतलब टिपिकल अप्लाइड साइंटिस्ट या रिसर्च बेस्ड रोल्स ऐसे ही होते हैं, वेयर दे हम्म. टॉक अ लॉट अबाउट रिसर्च एक्यूमेंट जैसे कि मेंशन किया, प्लस द राइट. मैथमेटिक्स पार्ट। राइट। या या. वेरी नाइस। सो भाई भाई ने तो आग लगा दी। कुछ ऐसा था कि मतलब ऐसा लगा कि अरे भाई मतलब नहीं बता पाया मैं, या फिर थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, दे वर नॉट इम्प्रेस्ड फ्रॉम दैट आंसर, पर ठीक है राउंड निकल गया, या फिर एवरीथिंग यू वर आंसरिंग बैम 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 एंड द राउंड वाज क्लियर? नहीं, मैं तो नाम ही भूल गया था एक्चुअली. मुझे नाम याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है. तो देयर वर थ्री कॉन्सेप्ट्स दैट दे वर डिस्कसिंग इन द रिसर्च पेपर. सो आई एक्सप्लेन्ड देम द होल आइडिया ऑफ द रिसर्च पेपर. लेकिन ये तीन नाम मैं भूल गया था. वन ऑफ देम इज वीसी डायमेंशन, देन अदर वन वाज आई थिंक रैचेट या फिर रैचनिक इंडेक्स करके वो होता है, और एक कुछ जनरलाइजेबिलिटी इंडेक्स या इस तरीके से कुछ था. सो ये तीनों नाम मेरे दिमाग से स्लिप हो गए. क्योंकि मैंने सुबह या एक दिन पहले कुछ पेपर पढ़ा था और नाम भूल जाता हूँ मैं बहुत जल्दी. तो मैं नाम भूल गया. आई टोल्ड देम कि एक काम करो, आप मुझे नाम बता दो पेपर में से देख के, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. सो दे स्टार्टेड लाफिंग कि ये तो तुमको याद करके आना चाहिए था ना. बट दे सेड कि चलो कोई बात नहीं, वी गेट दैट, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. बट थैंकफुली ऐसा हुआ कि ये बीच में हुआ था इंटरव्यू के, एंड जैसे इंटरव्यू खत्म होने लगता है दे अगेन आस्क यू टू ask questions from them. अगर आपको कुछ क्वेश्चन है कंपनी को लेके, कंपनी आपके राइट। रोल को लेके, एंड all those things. So as I asked them some question, they were answering. अचानक से मुझे याद आ गया तो उनको मैंने टोका नहीं, just wrote the three names on the paper, and जैसे ही उनका आंसर खत्म हुआ I slipped it to them कि ये तीनों नाम थे जो मैं भूल गया था. So आप चेक कर लो कि सही नाम है कि नहीं ऐसा. So अच्छा। नाइस at the end of the day सारी चीजें went more or less smooth. नाइस नाइस। मैं वैसे पूछने ही वाला था कि क्या पूछा क्वेश्चन लास्ट में। ठीक है। नाइस। सो Last one, I just asked हाँ। them about what does the day of a typical researcher at Fujitsu look like? हम्म। करते क्या हैं दिन में? Yeah, अच्छा। yeah. नाइस।
सो सुन के तो लग रहा है कि आग लगा दी, और वाकई लगा दी। फिर हाउ वाज द नेक्स्ट राउंड? नेक्स्ट वन वाज डायरेक्टली एचआर राउंड, एंड एचआर राउंड वाज मोस्टली उस तरीके से कि बिकॉज आपका टेक्निकल राउंड हो गया है तो दे नो दैट दे आर गोइंग टू टेक यू। सो एचआर राउंड वाज मोस्टली टू एक्सटेंड द ऑफर एंड क्लैरिफाई अ फ्यू थिंग्स कि आर यू रेडी टू रिलोकेट हियर, आपको कुछ सपोर्ट लगेगा नहीं लगेगा इन टर्म्स ऑफ रिलोकेशन एंड ऑल दोज थिंग्स, व्हाट डू यू एस्पायर टू डू एट फुजित्सु, ये सारी चीजें। सो टिपिकली ये सारी चीजें, बट मोर और लेस इट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड। दे एचआर राउंड में दे डायरेक्टली टोल्ड मी कि वी आर गोइंग टू एक्सटेंड यू एन ऑफर, एंड देन दे इवन सेड वेलकम टू द Fujitsu team and all those things. So नाइस HR round was not very complicated for Fujitsu. It was just extension of the offer and clarifying a few things. Just that. नाइस। सो दोनों ऑफर, ड्रीम्स 11 और फुजित्सु, दोनों बैंगलोर के लिए हैं? Dream 11 is for Mumbai. मुंबई, एंड फुजित्सु फॉर बैंगलोर। Fujitsu for Bangalore. नाइस भाई। तो पैसों की बात करते हैं, क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? Fujitsu का compensation was 28 and their again base was 24. So mostly the difference is in terms of the stock units. ओह, सो इनका CTC 28 है, और Yeah, उनका 50 था। बेस दोनों का ही yeah, सेम है, yeah. ड्रीम्स 11 और Base इसका दोनों का ही बेस same. 24 है। देन भाई द क्वेश्चन हम्म। अराइजेस कि भाई आपने कौन सी कंपनी चूज की और क्यों? I'm going with Fujitsu. Fujitsu हाँ। choose किया मैंने, and the deciding factor was वही research orientation, because at the end of the day I see myself doing more research things than product things, as opposed to that. So yeah, that was the motivation. That was the deciding factor. So I chose Fujitsu based on that. कि research करते हैं, पैसे तो कमा लेंगे थोड़ा थोड़ा करके. Yeah. नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मतलब रिसर्च कर ही रहे हो, पैसे तो मिल ही रहे हैं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस सेम ही है। Yeah, नाइस yeah. नाइस भाई। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसाइट मिला, इवन फुजित्सु रिसर्च के बारे में, प्लस द ड्रीम्स 11 के बारे में भी। आई जस्ट होप कि जो भी Mhm, इंसान या जो भी स्टूडेंट ये हमारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख रहा है, आई थिंक mhm. पर्सनली तो तुम्हें पक्का लिंक्डइन पे टेक्स्ट करेगा कि भाई थैंक यू सो मच फॉर द इनसाइट्स। थैंक यू सो मच भाई फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच। Thank you so much. It was fun doing this interview. या थैंक यू।